Hello, dear learners. Welcome to another session. In today's session, we will talk about cash flow statement. And this is our first video in this session in which we will discuss about cash flow statements. So first of all, let's look at the learning objectives that we have in this session. By the end of this session, you will learn about understanding the meaning of cash flow statement, understand the meaning of cash, cash funds, and cash equivalents, calculate operating profit and cash flow from operating activities through direct and indirect method, understand operating and non-operating expenses and income, calculate cash flow from operating activities, calculate cash flow from investing activities, cash flow from financing activities, prepare cash flow statement with additional information. So these are our learning objectives. So let's start the session. First of all, let's understand what is cash flow statement. A cash flow statement is a statement showing inflows, that is receipts, and outflows, that is payments of cash during a particular period of time. In other words, it is summary of sources and application of cash during a particular span of time. It analyzes the records for changes in the balance of cash between two balance sheet dates. So cash flow statement है क्या? As the name suggests, कैश का फ्लो. सो एक ऐसा स्टेटमेंट जो कैश के फ्लो को एक्सप्लेन कर रहा है. अब कैश का फ्लो कैसे होगा? किसी भी बिजनेस में या तो कैश आएगा या कैश बिजनेस से बाहर जाएगा. सो दीज आर द टू सिनेरियोज. सो ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, किन्हीं भी दो डेट्स के बीच में, इट कैन बी टू डेट्स ऑफ बैलेंस शीट, इट कैन बी बिगिनिंग ऑफ द मंथ एंड एंड ऑफ द मंथ, or it can be beginning of the quarter, end of the quarter, whatever the time frame is. तो किसी भी दो डेट्स के बीच में आपके पास कितना पैसा आया, कैश कितना आया, और वो जो कैश आपके पास आया था वो कैश आपने कहां पे यूटिलाइज किया या कहां पे वो पैसा खर्च हुआ, इस चीज को जो स्टेटमेंट शो करता है उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट. The term cash here stands for cash and cash equivalents. A cash flow statement includes only those items which affect cash. अब यहां पे जब हम कैश की बात करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम बोलते हैं, तो इट नॉट ओनली टॉक्स अबाउट cash only, but it also talks about cash equivalents. So later in the session, we will understand what do we understand by term cash equivalents. So a cash flow statement not only talks about cash, but it also talks about cash equivalents. So we can say a cash flow statement includes only those items which affects cash. So cash का मतलब जो है यहाँ पे जब when we are talking about cash, specifically in regard to cash flow statement, जब हम cash flow statement के context में cash टर्म यूज करते हैं, तो इसका मतलब हम सिर्फ जो कैश अमाउंट है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो कैश इक्विवेलेंट्स है. कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब जो चीज कैश के बराबर है उसको भी हम इंक्लूड करते हैं. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली उन सारे आइटम्स को इंक्लूड करता है या उन सारे ट्रांजैक्शंस को उन सारे ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं जो कि कैश की पोजीशन को इंपैक्ट करता है. या तो कैश या कैश इक्विवेलेंस जो है वो इंक्रीज होता है, या जबकि कैश और कैश इक्विवेलेंस डिक्रीज होता है. हम सिर्फ उन आइटम्स को इंक्लूड करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते टाइम. A cash flow statement can be for past or can be projected for a future period. तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाते हैं ये नॉर्मली हम पास्ट के लिए बनाते हैं टू एनालाइज द सिचुएशन और एनालाइज द फ्लो ऑफ कैश normally. But if required, you can
create a projected cash flow statement as well. That means कि या तो हम जो पीरियड बीत चुका है उसमें हम एनालाइज करें कि उस पीरियड में कितना कैश हमारे पास आया या कितना कैश इक्विवेलेंट आया, और जो कैश आया या कैश इक्विवेलेंट जो थे उनको हमने कैसे यूटिलाइज किया, या हम इसको फ्यूचर के लिए भी बना सकते हैं, ये प्रिडिक्ट करते हुए कि कितना कैश हमारे पास आएगा और उस कैश को हमें कहां कहां पे यूटिलाइज करना है. So this is pretty much about cash flow statement. Moving on, what are the objectives of preparing a cash flow statement? Cash flow statement हम क्यों बनाते हैं? To ascertain the sources of receipts of cash and cash equivalents from operating, investing and financing activities of the enterprise. सबसे पहले हम कैश फ्लो स्टेटमेंट ये देखने के लिए बनाते हैं कि जो कैश या कैश इक्विवेलेंट था वो हमारे पास कहां कहां से आएगा, और जो जहां से हमारे पास कैश आता है, जिन एक्टिविटीज से कैश आता है, उन एक्टिविटीज को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दैट इज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग. सो लेटर ऑन in this session we will understand in detail what are the operating activities, what are investing activities and what are financing activities. Second, to ascertain the application payments of cash and cash equivalents under operating, investing and financing activities of the enterprise. तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, ये पता करना कि किन किन सोर्सेस से हमारे पास पैसा आया, और जो पैसा हमारे पास आया उसको हमने कहां कहां पे यूटिलाइज किया. तो जैसे सोर्सेज जो है 3 कैटेगरीज में है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, उसी तरीके से हमारे जो एप्लीकेशंस हैं, यानी कि जिन अलग अलग हेड्स में या जिन अलग अलग अकाउंट्स पे हम ये पैसा खर्च करेंगे, वो भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, दैट इज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग. To ascertain the net change in cash and cash equivalents, that is the difference between sources and applications under the 3 activities between the dates of 2 consecutive balance sheet. अब हमारे पास दो बैलेंस शीट्स हैं, वन आफ्टर अनदर. तो एक बैलेंस शीट से फॉर एग्जांपल हमारे पास ईयर 2021-22 की है और एक 22-23 की है. तो इन दो बैलेंस शीट्स में जो कैश और कैश इक्विवेलेंट्स था, उनका जो पोजीशन है, उनका जो बैलेंस है, उसमें कितना चेंज हुआ. क्या जो बैलेंस हमारे पास 2021-22 के बैलेंस शीट में था, उसके कंपैरिजन में 2022-23 के बैलेंस शीट में हमारा कैश का बैलेंस बढ़ा या कम हुआ, या जो कैश इक्विवेलेंट्स थे उनका बैलेंस इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ. तो ये भी हम पता करते हैं. नेट चेंज मतलब एक्चुअल में कितना हमारा जो कैश बैलेंस था वो कितना इंक्रीज हुआ या कितना डिक्रीज हुआ. To highlight the major activities that have provided cash and that have used cash during a particular period and showed their effect on overall cash balance. Then when we prepare the cash flow statement, we can easily identify that what were the major sources from where the business has generated cash or cash equivalents, and it also helps us in identifying the major applications or the major heads on which the cash or cash equivalent was spent during the period in consideration. And जो ओवरऑल कैश बैलेंस की पोजीशन है उस पे उन एक्टिविटीज ने क्या इंपैक्ट डाला. तो जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे तो यू कैन आप बड़े आराम से ये पता लगा सकते हो कि कौन से ऐसे हेड्स थे या कौन से ऐसे अकाउंट्स थे जहां से आपको कैश या कैश इक्विवेलेंट मिला, और आप ये भी बड़े आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से ऐसे हेड्स या अकाउंट्स थे जहां पे कि आपका मेजॉरिटी ऑफ द कैश या कैश इक्विवेलेंट्स कंज्यूम हुए और उनका ओवरऑल कैश पोजीशन पे या कैश बैलेंस पे क्या इंपैक्ट पड़ा. So these were the objectives of preparing cash flow statement. Why the cash flow statement is important or why it is used. Useful for short-term financial planning.
तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का सबसे पहला जो यूज है या इंपॉर्टेंस है वो ये है कि आप शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो कि हमारे पास अगले 1 महीने में, 2 महीने में या 3 महीने में कितना पैसा आने वाला है, कौन कौन से हमारे एक्सपेंसेस हैं। अगर हमें एक्सपेंसेस पता है और हमें सोर्सेस पता है तो वी कैन इजीली फाइंड आउट कि कहीं गैप तो नहीं है, कि पता चला अगले 3 महीने में मुझे मेजर पेमेंट्स करने हैं से वर्थ 200,000 और मेरे पास जो कैश आने वाला है दैट इज ऑफ ओनली 100,000, तो देयर इज अ गैप ऑफ अनदर 100,000, तो वो 100,000 यू कैन अरेंज। तो दैट्स हाउ यू कैन plan in short term for your finance. Useful in preparing the cash budget. अब बजट जो वर्ड है, बजट का जो लिटरल मीनिंग है दैट इज टू डू द प्लानिंग। बेसिकली बजट इज अ काइंड ऑफ अ प्लानिंग जिसमें हम ये प्लान करते हैं कि ठीक है हमारे पास इतना पैसा आने वाला है और ये जो पैसा है हम इस हेड में खर्च करेंगे। ठीक है, तो दिस इज अगेन when you have the cash flow statement, it is easy for you to prepare the cash budget. Comparison with the cash budget. अब आपने कैश बजट बना लिया और आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया तो आप दोनों में कंपैरिजन कर सकते हो। कई बार क्या होता है जब हम प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग इज ऑलवेज फ्यूचरिस्टिक। तो जब हमने फ्यूचर में प्लान किया कि ठीक है हम इन हेड्स में पैसा खर्च करेंगे और यहाँ से हमारे पास पैसा आएगा, जब वो आप एक्चुअली इंप्लीमेंट करते हो उसके बाद में यू प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो आप उसमें ये देख सकते हो कि जहां से हमने जितना पैसा आएगा इस चीज का एस्टिमेट किया था क्या एक्चुअल में उतना पैसा आया, और जिस जिस हेड पे हमें जितना पैसा खर्च करना था क्या हमने एक्चुअल में उतना ही पैसा खर्च किया या कहीं ज्यादा किया या कहीं कम किया है। सिमिलरली जो सोर्सेज हमने आइडेंटिफाई किए थे क्या उन सोर्सेज से हमारे पास उतना ही पैसा आया या कहीं से कम आया है या कहीं से ज्यादा आया है। तो दिस विल अगेन गिव यू अ फीडबैक so that in future when you are doing your cash budgeting you can prepare a more realistic or more accurate budget। तो जब आपने देखा कि लास्ट टाइम हमने सोचा था कि से फॉर एग्जांपल सेल से हमारे पास 100,000 आएगा, बट पता चला एक्चुअल में सेल से हमारे पास सिर्फ 80,000 आया। हमने सोचा था कि हमें सैलरी और वेजेस में 60,000 पे करने पड़ेंगे, बट एक्चुअल में हमें वेजेस और सैलरीज में 70,000 पे करने पड़े। तो दिस विल गिव यू सम इनपुट, सम फीडबैक। तो जब आप नेक्स्ट टाइम अपना बजट प्रिपेयर करोगे तो आपका जो बजट होगा वो ज्यादा एक्यूरेट होगा या वो ज्यादा रियलिस्टिक होगा। स्टडी द ट्रेंड ऑफ कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे तो जब आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बनाओगे या मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बनाओगे तो आपको उसमें एक ट्रेंड दिखने लगेगा कि सेल्स से हमारे पास नॉर्मली कितना पैसा आता है, हमारे परचेजेस कितने के होते हैं, हमारे सैलरी और वेजेस पे क्या खर्चा होता है, हमारे रेंट पे क्या खर्चा होता है। तो आपको दोनों तरफ से सोर्सेस के भी ट्रेंड का पता चलेगा और आपको जो एप्लीकेशन है या जो पेमेंट है उसके भी उसका उसका भी आपको एक ट्रेंड पता चल जाएगा। अगर आप मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बनाओगे तो यू कैन फिगर आउट कि ठीक है किस महीने में हमारी सेल ज्यादा होती है, किस महीने में हमारे पास जो डेटर से है रिकवरी अच्छी होती है, किस महीने में हमारे पास डेटर से रिकवरी कम हो जाती है, किस महीने में हमें ज्यादा रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ता है, किस महीने में हमारे फ्यूल और एनर्जी के एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो दिस विल हेल्प यू टू फाइंड आउट द ट्रेंड्स एज वेल। It explains the deviations deviations of cash from earnings। तो अगर कहीं पे आपने एक अमाउंट अपने दिमाग में बिठा के रखा है, अपने कैलकुलेशन से निकाला है कि मेरे को इतना अमाउंट मिलना चाहिए इस पर्टिकुलर पीरियड में, लेकिन क्या उतना ही मिला, अगर नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, या हमारे पास इतना कैश बैलेंस होना चाहिए था एज पर योर बजट, लेकिन जब आपने देखा एक्चुअल में उतना आपके पास कैश बैलेंस या कैश इक्विवेलेंस नहीं थे तो वो क्यों नहीं थे, क्या हमारे सोर्सेज से हमारे को पैसा कम मिला या हमारे एप्लीकेशंस ज्यादा हुए। हेल्प इन असर्टेनिंग कैश फ्लो फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज सेपरेटली। एज आई टोल्ड यू couple of slides back that all the accounts or heads which have an impact on cash or cash equivalents are categorized into 3 categories, that is operating, financing and investing, right?
So we have these three categories, and all the three categories have some sources and some applications. तो अलग अलग हेड से या अलग अलग एक्टिविटीज से, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हमारे पास कितना कैश आया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हमने कितना कैश डाला, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हमने कितना कैश मिला, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से हमें कितना कैश मिला और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हमने कितना कैश डाला, या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कितना कैश डाला और कितना कैश मिला, ये भी आप सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ कैश फ्लो स्टेटमेंट. हेल्पफुल इन मेकिंग डिविडेंड डिसीजन. Dividend, when we talk about joint stock companies, so whosoever has invested in any kind of share in a joint stock company or in a company, उन शेयर होल्डर्स को या उन इन्वेस्टर्स को हमें उनके इन्वेस्टमेंट पे कुछ रिटर्न देना पड़ता है, एंड दैट रिटर्न इज टर्म्ड एज डिविडेंड. तो डिविडेंड पे करने के लिए आपके पास कैश होना चाहिए. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो ये शो करता है कि कहाँ पे आपके पास सरप्लस कैश है, या कहाँ over a period of time, which are the months where you will have surplus cash, or how much surplus cash you have, so that you can pay the dividends. So डिविडेंड पेमेंट से रिलेटेड, या आपको कितना डिविडेंड देना है. कई बार ऐसा भी होता है कि इंस्टेड ऑफ पेइंग द एंटायर डिविडेंड इन फॉर्म ऑफ कैश, वो बोलते हैं ठीक है, वी आर a company can say that okay, we are declaring 15% dividend. Out of that, 10% dividend will be provided in form of cash, and for the rest of the 5% dividend we will issue bonus shares. So companies can do that. लेकिन अब 15% डिविडेंड देना है या 10% देना है या 5% देना है, उस 5%, 10%, 15% में से कितना कैश में देना है, कितने का बोनस शेयर्स इशू करोगे, all these decisions can be arrived more accurately, more easily when you have the cash flow statement in front of you. Test for managerial decisions. अब जब आपने कैश का बजट बना लिया और आपने बोला कि यहाँ पे इतना खर्चा होना है, यहाँ पे इतना खर्चा होगा, या यहाँ से इतना पैसा मिलेगा, उतना पैसा मिलेगा, और हम इसको इस ढंग से यूटिलाइज करने वाले हैं, तो ये सारे किसके डिसीजन है? मैनेजमेंट के डिसीजन है. तो अगर तो आपका बजट और आपका कैश फ्लो बिल्कुल मैच कर रहा है, तो दैट मीन्स आपका जो मैनेजरियल डिसीजन है वो सही है. दूसरा, अगर आपको बार बार कहीं से लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है, एंड आप अपने बिजनेस के लिए जितना कैश चाहिए, यू आर एबल टू जनरेट द कैश फ्रॉम द डिफरेंट एक्टिविटीज of your business, or you can manage your cash well, so that means your managerial decisions are good. Otherwise there is something wrong with your managerial decisions. Useful to outsiders. अब कैश फ्लो स्टेटमेंट देख के हमें जो आउटसाइडर्स है, हु आर नॉट पार्ट ऑफ द बिजनेस, चाहे वो आपके क्रेडिटर्स हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हो, या करंट इन्वेस्टर्स हो, उनको ये समझ में आता है कि ये जो कंपनी है शॉर्ट टर्म में इसकी सॉल्वेंसी कैसी है, हाउ वेल और हाउ कैश रिच दिस बिजनेस इज टू सपोर्ट देयर एक्टिविटीज और मीट देयर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल requirements, or whether this company is having sufficient liquidity or not. Because if the company is not having sufficient liquidity, then the company may not be able to meet its day-to-day expenses, and ultimately it will impact the overall performance of the company. So cash flow statement provides very useful information to outsiders as well. So that's pretty much about the importance and use of cash flow statement. But there are some limitations of cash flow statement. And what are those limitations? First, not suitable for judging the liquidity. As I told you in the last point of the previous topic, that is use and importance of cash flow statement, the one point that we have discussed was useful for outsiders. So cash flow statement जो है वो liquidity को शो करता है, बट
this is not the only tool that a person or an outsider should use to judge the liquidity. It can give you an idea to an extent, but it should not be the only tool or only piece of information that you should be using to using for judging the liquidity. पॉसिबिलिटी ऑफ विंडो ड्रेसिंग, पॉसिबिलिटी ऑफ विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है कि इसमें हम कई बारी मैनेजमेंट जो है वो साउंड कैश पोजीशन या कैश फ्लो स्टेटमेंट को हेल्दी दिखाने के लिए वो फिगर्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी कर सकते हैं. इट इग्नोर्स नॉन कैश ट्रांजैक्शंस. In the very beginning, when we were discussing the definition of cash flow statements, we said that cash flow statements are prepared using the information or using the balances of accounts which are either cash or cash equivalents, and it only considers those items which have some impact on the cash balance. This is what we have discussed. So cash flow statement completely ignores the non-cash transactions, and there may be scenarios where a non-cash transaction may have huge financial impact. So if we are ignoring the non-cash transactions, that means in one way or other way, we are neglecting one very important component of financials of the business. So while preparing the cash flow statement, non-cash transactions are not considered. So the picture or the information that we are getting from a cash flow statement may not be very accurate to judge the health or financial stability of the business. It ignores the accrual concept of accounting. तो हम जब यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, इफ यू गाइज रिमेंबर, हमने 11th स्टैंडर्ड में जब बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा था तो उसमें दो बेस हमने डिस्कस किए थे. एक था एक्रूअल बेस अकाउंटिंग, एक था कैश बेस अकाउंटिंग. तो कैश बेस अकाउंटिंग में क्या होता है, वी रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच आर टेकिंग प्लेस इन कैश. आपने कोई कैश सेल्स की, यू विल रिकॉर्ड इट. आपने कोई कैश पेमेंट किया, यू विल रिकॉर्ड इट. अगर आपने कोई क्रेडिट सेल की, आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे. अगर आपने कोई एक्सपेंस इनकर किया जिसका भी आपने पेमेंट नहीं किया, आप वो भी रिकॉर्ड नहीं करोगे. वेयर एज एक्रूअल बेस अकाउंटिंग में क्या होता है कि हम सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, चाहे तो वो कैश में हो चाहे वो क्रेडिट में हो. यानी कि आपने कैश सेल्स किया, आप वो भी रिकॉर्ड करोगे, और अगर आपने कोई क्रेडिट में सेल किया, आप वो भी रिकॉर्ड करोगे. इसी तरीके से कोई एक्सपेंस आपने आज पे किया, आप उसको भी एंट्री करोगे, और कोई एक्सपेंस आज आपने बुक्स में रिकॉर्ड किया है जो कि आप आज से 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद उसकी पेमेंट करोगे, आप उस ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड करोगे. सो इन एक्रूअल बेस अकाउंटिंग द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एज इन व्हेन दे आर हैपनिंग और दे आर टेकिंग प्लेस, irrespective of fact that whether that transaction is done in cash or it is a credit transaction. तो यहाँ पे जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, हम सिर्फ कैश या कैश इक्विवेलेंट्स को कंसीडर करते हैं, या हम सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस को कंसीडर करते हैं जिनका कि कैश या कैश इक्विवेलेंट्स पे कोई इंपैक्ट पड़ता है. तो इसका मतलब अगर कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते टाइम कंसीडर नहीं करते हैं. नॉट सुइटेबल फॉर एन इनकम स्टेटमेंट. इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए भी कैश फ्लो स्टेटमेंट को आप यूज नहीं कर सकते हो, या आप ये भी कह सकते हो कि इट इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर इनकम स्टेटमेंट. हिस्टोरिकल इन नेचर. जो कैश फ्लो है नॉर्मली, एज आई टोल्ड यू इन द वेरी बिगिनिंग, इज प्रिपेयर्ड फॉर अ पास्ट पीरियड. प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बहुत रेयरली बनते हैं, ठीक है. तो ये हिस्टोरिकल है कि कितना आया, कहाँ पे खर्च हुआ. तो the transactions has already taken place, you are just trying to figure analyze this data and get some more insight into the transactions. That's what normally cash flow statement does.
So those were the limitations of cash flow statement. Cash flow statement versus income statement. Let's uh, try to compare these two statements. So cash flow statement is what we have just discussed. Income statement, or you can say profit and loss account or profit and loss statement. Nature, it records sources and utilization of cash only when we talk about cash flow statement. Whereas in income statement, it records revenue and expenses. Objective, the purpose of cash flow statement is to provide information about cash flows from operating, investing, and financing activities for a given period of time. The purpose of income statement is to ascertain the net profit or loss for a given period of time. Information needed for, it is prepared on the basis of 2 consecutive balance sheets and additional information. Whereas income statement, it is prepared from the balances of nominal accounts and additional information. Scope, it only shows the movement of cash, that is cash inflows and cash outflows. Hence, its scope is limited. It shows the result of all business transactions for a period. Hence, its scope is wide. Basis of preparation, it is prepared on cash basis of accounting, whereas income statement is prepared on the accrual basis of accounting. Moving on further, matching. It matches the sources of cash with the utilization of cash and hence discloses positive or negative cash flow from different activities. तो जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं वहां पे हम क्या करते हैं, सोर्सेज और यूटिलाइजेशन को मैच करते हैं कि पैसा कहां से आया और पैसा कहां गया, और वो अल्टीमेटली ये डिस्क्लोज करेगा कि आपका जो कैश फ्लो था वो नेगेटिव था या पॉजिटिव था. Whereas income statement is, it matches cost of goods sold and expenses with sales and other incomes and discloses net profit or loss. तो जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं वहां पे हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और एक्सपेंसेस को सेल्स और अदर इनकम्स जो है उनके साथ मैच करते हैं, और इनकम स्टेटमेंट जो है लास्ट में हमें यह बताता है कि वेदर द बिजनेस हैज अर्न नेट प्रॉफिट और हैज सफर्ड नेट लॉस. टाइमिंग ऑफ प्रिपरेशन, इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इट इज नॉट प्रिपेयर्ड फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने के बाद, एंड एज यू नो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स द इनकम स्टेटमेंट एंड पोजिशनल स्टेटमेंट. इनकम स्टेटमेंट में आपका ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाता है, और पोजिशनल स्टेटमेंट का मतलब हो गया आपका बैलेंस शीट. सो दैट वंस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, दैट मीन्स आपका बैलेंस शीट तैयार हुआ, उसके बाद आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो. जबकि इनकम स्टेटमेंट जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट से नहीं बनाया जाता है. लिक्विडिटी वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी, इट रिवील्स लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द बिजनेस. कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो बिजनेस के लिक्विडिटी यानी कि कितना कैश है उसके पास वो पोजीशन शो करता है, जबकि इनकम स्टेटमेंट रिवील्स द प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन ऑफ द बिजनेस. इनकम स्टेटमेंट से हमें यह पता चलता है कि बिजनेस को कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है. Format, Accounting Standard 3 revised describes the format and contents of cash flow statement. जबकि Schedule 3 of Companies Act of 2013 has prescribed the format and contents of statement of profit and loss. Manipulation of cash flow statement is not possible because it shows the actual balance of cash and cash equivalents at the end. Whereas manipulation of income statement is quite possible, and it may show inflated income by overvaluation of inventory, reduced depreciation, etc. कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैनिपुलेशन के चांसेस कम होते हैं, बिकॉज आप जो कैश बैलेंस शो करोगे या कैश इक्विवेलेंस का बैलेंस शो करोगे, दैट शुड टाई बैक टू द फिगर्स विच आर अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट. दैट्स नंबर 1. नंबर 2, आपने बोला कि कैश का जो बैलेंस है या बैंक अकाउंट में जो बैलेंस है दैट इज 100,000. सो वेदर एक्चुअली इन द बैंक देयर इज 100,000 और नॉट, दैट कैन बी टैलीड और दैट कैन बी वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ अ बैंक स्टेटमेंट. तो यहाँ पे
जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो तो कैश और कैश इक्विवेलेंट्स का लास्ट में क्या बैलेंस है वो आपको शो करना पड़ता है। तो ओपनिंग बैलेंस जो है वो आप प्रीवियस बैलेंस शीट से लोगे, और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो करंट बैलेंस शीट के साथ मैच होना चाहिए। तो प्रीवियस बैलेंस शीट से जो आपने ओपनिंग बैलेंस लिया है, से फॉर एग्जांपल बैंक अकाउंट का, वो उस डेट को यानी कि 31 मार्च 2022 को, से फॉर एग्जांपल जो बैंक बैलेंस है वो आप बैंक स्टेटमेंट से टैली कर सकते हो। इसी तरीके से 31 मार्च 2023 को जो बैंक बैलेंस है वो भी आप बैलेंस शीट से और बैंक स्टेटमेंट से टैली कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो टैली हो सकता है, इस वजह से यहाँ पे मैनिपुलेशन के चांसेस कम होते हैं। जबकि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट जो है वहां पे आप मैनिपुलेशन कर सकते हो। आप इन्वेंट्री, मेरे पास जो सामान है उसकी वैल्यू मैं चाहूं तो 1,000 भी शो कर सकता हूँ, मैं चाहूं तो 10,000 भी शो कर सकता हूँ। डेप्रिसिएशन है, मैं 5% के रेट पे भी चार्ज कर सकता हूँ, मैं 10% के रेट पे भी चार्ज कर सकता हूँ। तो इन्वेंट्री की ओवर वैल्यू कर दूं, मैं डेप्रिसिएशन को कम वैल्यू पे चार्ज करूं, या चाहिए तो मैं बोलूंगा कि ठीक है अभी तो ये मशीनरी हमने इसी साल इंस्टॉल किया, हम इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर रहे। सो ये कुछ टैक्टिस या कुछ प्रैक्टिस यूज करके हम जो इनकम है जो इनकम स्टेटमेंट का रिजल्ट है उसको ऑल्टर कर सकते हैं। तो these are the 10 points, or these are the 10 basis on which you can differentiate between a cash flow statement and a income statement. And as I have been telling you this thing again and again, and I'm repeating this thing almost in my all the sessions whenever we are talking about um, uh, comparison between two documents or two accounts or whatever. So at the time of comparison, I always suggest that it is better to differentiate between two things in a tabular format in your examinations. So that will help you. So try to follow this practice if you like it. Moving further, let's now look at some definitions. Cash means cash in hand and demand deposits with the bank. तो कैश का मतलब क्या हुआ? जो कैश हमारे हाथ में है, द हार्ड कैश दैट वी आर हैविंग इन आवर हैंड्स, एंड द डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक. नाउ दिस टर्म डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक मींस व्हाट? आपका पैसा बैंक में जमा है. सो बैंक इज अंडर an obligation ki whenever you will go and ask the bank to give you money, they have no choice but to give you the amount that you are asking for. Now you can go to the bank and you can ask them for a loan. So in that case, the decision lies with the bank. They will consider couple of things: your credit ratings, your goodwill in the market, what is your financial position. They will ask you for 10 different documents. They will go through the documents, and then finally they will decide whether to give you a loan or not. So taking loan from bank is not a demand deposit kind of a thing. But in your current account or in your saving account, if you have money available, okay, then bank has no choice but to give you the money from those accounts as and when you will ask. तो बैंक के पास आपका पैसा अगर डिपॉजिट है आपका, चाहे वो करेंट अकाउंट में हो, सेविंग अकाउंट में हो, फिक्स डिपॉजिट में हो, किसी भी फॉर्म में हो, जो आपका पैसा आपने बैंक को रखने के लिए दिया है, तो जब भी जिस दिन भी आपको चाहिए आप जाके बोलोगे भाई साहब मेरे को पैसे दे दो, बैंक के पास कोई चॉइस नहीं है बट बैंक को आपको पैसे देने ही पड़ेंगे. लेकिन लोन के केस में वो बैंक डिसाइड करेगा कि आपको लोन देना है या नहीं देना है. तो कैश का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो कैश आपके हाथ में है वो हार्ड कैश, प्लस बैंक में ऐसा जो भी डिपॉजिट है जिसको कि जब भी आप मांगोगे बैंक को वो पैसा आपको देना पड़ेगा. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डिमांड डिपॉजिट्स. तो कैश प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक इज कंसिडर्ड टू बी कैश फ्रॉम द cash flow statement of standpoint. Yeah, in context to cash flow statement, cash means cash in hand plus demand deposits with the bank.
Cash funds as per Accounting Revised Standard 3 AS3 issued by the Council of ICAI. Cash funds include cash in hand, demand deposits with the bank and cash equivalent. तो अगर हम AS3 की बात करते हैं तो एज पर AS3 जो कैश है, कैश फंड्स जो टर्म है वो तीन चीजें इंक्लूड करता है। पहली चीज जो वो इंक्लूड करता है वो है कैश इन हैंड, देन डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो कैश इन हैंड हमने डिस्कस कर लिया, डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक हमने इंक्लूड कर लिया। अब लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर कैश इक्विवेलेंट्स। So before we go to the cash equivalents, from the above, it may be noted that cash funds is a broad term which includes cash equivalents apart from actual cash in hand. तो जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो कैश फंड्स जो है इट नॉट ओनली इंक्लूड्स द कैश दैट यू आर हैविंग इन हैंड बट इट आल्सो इंक्लूड्स द कैश इक्विवेलेंट्स। नाउ let's understand what are cash equivalents. Cash equivalents means short-term, highly liquid investments that are readily convertible into known amounts of cash and which are subject to an insignificant risk of change in value. Investment with short-term maturity period of say 3 months or lesser from the date of acquisition qualify as a cash equivalent. Cash equivalent का मतलब क्या हुआ? शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स। तो शॉर्ट टर्म का पहले मतलब समझ लेते हैं। कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट जिस डेट को आपने वो इन्वेस्टमेंट किया हो और जिनका मेच्योरिटी पीरियड 3 मंथ्स हो फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। यानी कि आपने 1 जनवरी को कोई इन्वेस्टमेंट खरीदा एंड इट इज due to get mature on 31st of March, it will qualify as a short-term investment. That's number one. Highly liquid. Highly liquid का मतलब है anything that can be converted into cash very easily. Say for example, आपने fixed deposit कराया for 90 days. तो अब वो जो फिक्स डिपॉजिट आपने 90 डेज के लिए कराया उसको कैश में कन्वर्ट करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। आप बैंक में जाओगे, एक रिक्वेस्ट डालोगे कि प्लीज डिसकंटिन्यू माय दिस एफडी एंड ट्रांसफर द अमाउंट टू माय करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। बैंक विल डू दैट इमीडिएटली विद इन 10 to 15 minutes. और इफ यू आर यूजिंग नेट बैंकिंग यू कैन डू इट योरसेल्फ आल्सो, ठीक है, which will take like hardly 5 minutes. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक तो शॉर्ट टर्म, that means जो इन्वेस्टमेंट है that is for not for more than 90 days. Number one. Number two, it can easily be converted into cash. And known amounts of cash. Known amounts of cash का मतलब क्या है कि आपके पास से फॉर एग्जाम्पल डेटर्स हैं, ठीक है, डेटर्स हैं आपके पास 10,000 के डेटर्स हैं और आप डेटर्स को अगर आप बोलोगे कि आई विल प्रोवाइड योर डिस्काउंट, गिव मी द मनी टुडे इटसेल्फ, तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ जो है दैट इज नॉट वेरी नोन। व्हाई इट इज नॉट नोन? वो बोलेगा कि आपने ऑफर किया कि ठीक है आई विल गिव यू 5% डिस्काउंट, दैट मीन्स यू आर रेडी टू टेक 9,500 रुपीज इन प्लेस ऑफ 10,000। तो यहाँ पे जो वैल्यू जो थी 10,000 से डिक्रीज होके कितना हो गया? 9,500। लेकिन जो आपका डेटर है वो बोलता है कि नहीं 5% नहीं, गिव मी 10% डिस्काउंट, देन ओनली आई कैन पे यू टुडे इटसेल्फ, और गिव मी 15% डिस्काउंट, सो टुडे इटसेल्फ आई कैन पे यू। तो अब यहाँ पे जो डिक्रीज इन वैल्यू है दैट इज like 5%, 10%, 15%, it is not known. लेकिन जब आप से फॉर एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था फिक्स डिपॉजिट का, वहां पे क्या होगा? आपने 10,000 की एफडी कराई है तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपने से 10,000 की एफडी कराई फॉर 90 डेज एंड आफ्टर 80 डेज यू आर गोइंग टू द बैंक एंड टेलिंग देम दैट आई वांट टू प्री क्लोज माय एफडी, ठीक है। तो प्री क्लोज का मतलब क्या हुआ? उसका जो मेच्योरिटी डेट है, मेच्योरिटी टाइम फ्रेम है दैट इज ऑफ 90 डेज, लेकिन 90 डेज की बजाय आप उसको सिर्फ 80 डेज पे
क्लोज करा रहे हो, यानी कि पहले करा रहे हो, प्री क्लोजर करा रहे हो, तो वहां पे आपको कम से कम 10,000 तो मिलेगा, और पॉसिबल है कि आपको जो वो 80 डेज है उस पे आपको इंटरेस्ट भी मिल जाए। तो नोन अमाउंट्स, यानी कि आपको यहाँ पे अमाउंट पता है कि हाँ, अगर मैं ये इस एफडी को डिसकंटिन्यू कराऊंगा तो मुझे एटलीस्ट 10,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। एंड विच आर सब्जेक्ट टू एन इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू। तो यहाँ पे आपने 90 डेज के लिए एफडी कराया 10,000 का, आपने बोला ठीक है इस पे मुझे से 2% इंटरेस्ट मिलेगा, तो मुझे एक्चुअल में मिलना चाहिए था 10,200, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको प्री क्लोजर कराऊंगा तो हो सकता है मुझे 10,200 की जगह 10,150 ही मिले, या 10,100 ही मिले। तो यहाँ पे जो चेंज इन जो रिस्क है वो 1%, 1.5%, 2% के आसपास होवर कर रहा है, तो इट इज इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू। वेयर एज जो मैंने आपको डेटर्स वाला एग्जांपल दिया था वो 5%, 10%, 15% भी हो सकता है। So that's why cash equivalents means short-term, highly liquid investment that are readily convertible into known amounts of cash and which are subject to an insignificant risk of change in value. तो इस चीज को, तो डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई। अब इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक चीज ये जो 3 मंथ्स वाला टाइम फ्रेम है इसको आप अच्छी तरीके से समझ लो और याद रखना, बिकॉज आगे चल के जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको एक इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, अब उस इन्वेस्टमेंट को आप कैश इक्विवेलेंट में कंसीडर करोगे या उसको आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कंसीडर करोगे, वो किस चीज पे डिसाइड होगा, बेसिस व्हाट इज द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट। इफ द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट इज equals to or less than 3 months, it will be considered as a cash equivalent, और अगर 3 महीने से ज्यादा है तो आप उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कंसिडर कर सकते हो। So cash equivalent consists of bank overdraft, cash credit, short-term deposits, marketable securities. So these are some of the examples of cash equivalent. Thus, cash flow statement deal with flow of cash funds, which includes cash equivalents as well as actual cash. Now, there are a couple of points that you should remember. Cash flow statement is an additional information to user of financial statement. The statement exhibits the incoming and outgoing of cash. The cash statement assesses the capability of the enterprise to generate cash and utilize it. Cash flow statement is undoubtedly a tool for assessing the liquidity and solvency of the enterprise. Revised AS3 excludes movement between items that constitute cash and cash equivalents as they are part of the cash management of enterprise and do not relate to operating, investing and financing activity. जो AS3 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है, वो जो आइटम्स हमारे कैश या कैश इक्विवेलेंट की कैटेगरी में आते हैं उनके बीच में अगर कोई मूवमेंट होता है तो उसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते टाइम कंसीडर नहीं करते हैं। क्यों नहीं कंसीडर करते हैं? क्योंकि उसके पीछे ये लॉजिक है कि ये एंटरप्राइज के कैश मैनेजमेंट की एक्टिविटी है एंड इट इज नॉट एन ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसके एग्जांपल्स क्या है? कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस। अब इनिशियली हमने जब हम डेफिनेशंस पढ़ रहे थे उसमें हमने क्या कहा था? कैश प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक। तो कैश इन हैंड आपके पास है और बैंक का आपके करंट अकाउंट में जो बैलेंस है दैट इज अ डिमांड डिपॉजिट। सो बोथ फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट्स। अब यहां पे आप जो पैसा है आपका, चाहे आप कैश में अपने हाथ में रखो या उसको अपने करंट अकाउंट में रखो, बात तो एक ही है। या आपने कुछ पैसा करंट अकाउंट से निकाल के कैश इन हैंड कर लिया या कैश इन हैंड से कुछ पैसा आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो सिर्फ जो अकाउंट है, जो अमाउंट है दैट इज गेटिंग मूव बिटवीन द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो उसका ओवरऑल जो कैश बैलेंस है आपका उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से
डिपॉजिट इनटू बैंक, या परचेज एंड सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अब आपके पास कैश है, अब वो कैश को या तो आप कैश इन हैंड बना के रखो, या आप उससे 2 महीने 3 महीने के लिए एफडी बना लो, या कोई बॉन्ड परचेज कर लो फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स 2 मंथ्स। तब भी वो सिर्फ एक अकाउंट से निकल के दूसरे अकाउंट में जा रहा है, बट ओवरऑल आपका जो कैश पोजीशन है उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। So that's why any movement of items between cash and cash equivalents is not considered while preparation of cash flow statement. Now, when we talk about indirect method as per AS 3 revised, that is Accounting Standard 3 revised, cash flow from operating activities can be calculated under direct as well as indirect method. We will only discuss indirect method, which is there in your syllabus. Indirect method, profit and loss account is adjusted for the effect of transactions of non-cash nature. The adjustment is carried down by adding non-operating expenses to net profit during the year and deducting non-operating income from the net profit. Adjustment for changes in working capital is also made under this method. Now, there are two methods of preparation of cash flow statement, that is direct method as well as indirect method. For from your syllabus standpoint, we will only discuss the indirect method. So far, so good. Now, in indirect method, profit and loss account is adjusted for the effect of transaction of non-cash nature. हम यहाँ पे क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं? हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है उसको हम एडजस्ट करते हैं फॉर द इफेक्ट ऑफ नॉन ट्रांजैक्शंस ऑफ नॉन कैश नेचर। तो जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाते हैं उसमें हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, जिसमें कि हम कैश और नॉन कैश दोनों तरीके के ट्रांजैक्शंस को कंसीडर करते हैं। लेकिन यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है उसको एडजस्ट करेंगे, और उसको एडजस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस हैं उसका पहले एडजस्टमेंट करते हैं। और इस एडजस्टमेंट को हम कैसे करते हैं, by adding non-operating expenses to the net profit during the year. Non-operating expenses, अब non-operating expenses का मतलब क्या होता है, there is a business, there is a business unit which is dealing in, say for example, cars, okay, car manufacturing. So the primary source of income for that car manufacturer is by selling of cars. ठीक है, जो कंपनी है जो कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है, उसका जो सोर्स ऑफ इनकम है या उसकी जो मेजर एक्टिविटी है वो क्या है, वो कार बनाएगी, उस कार को बना के बेचेगी और उसको सेल करके जो इनकम होगा दैट इज ऑपरेटिंग इनकम। अब जब उन्होंने कार बनाना शुरू किया तो उस कार को उन्होंने अपने जो कार बनाने के लिए जो फैक्ट्री बनाई है वो से फॉर एग्जांपल हाईवे के साइड में है, और हाईवे के साइड में उनकी जो वॉल है दैट इज लाइक 2 किलोमीटर्स लॉन्ग वॉल, कंपाउंड वॉल। और वहां पे किसी ने आके बोला कि बॉस एक काम करो, आप ये जो 2 किलोमीटर लंबी जो दीवार है ये आप हमें रेंट पे दे दो, हम यहाँ पे अपना एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं और उसके लिए वी विल पे यू सम मनी। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो वो कार मैन्युफैक्चरर है उसको अपनी वॉल जो है कंपाउंड वॉल उसको भी रेंट पे देके उसको कुछ इनकम हो रही है, बट दिस इज नॉट द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो जहां पे जो भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उनको हम ऐड कर देते हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से फॉर एग्जांपल लॉस बाय फायर, तो
आपकी कार मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट है, वहां पे आपको इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस देना है, आपको रेंट देना है, आपको सैलरीज एंड वेजेस देने हैं। ये सारी चीजें तो पार्ट ऑफ बिजनेस है। बट हर साल आपके उसमें आग लगेगी नहीं लगेगी, या आग लगाना इज अ पार्ट ऑफ योर प्रोसेस, कि ठीक है गोडाउन में एक तरफ आग लगा दो, so that is not the part of your regular business, so that is a non operating expense. तो जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, मींस दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर नॉट रिलेटेड टू द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस are added, because in one way or other way, when you are preparing the profit and loss account or your profit and loss statement, you are charging all the expenses, whether it is operating expense or whether it is नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, आप सारे एक्सपेंसेस को डिडक्ट करते हो। तो और जितने भी इनकम्स है, चाहे वो ऑपरेटिंग इनकम हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो, उन सबको आप ऐड करते हो, देन यू रीच ऑन टू अ फिगर विच कैन आइदर बी अ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की फिगर है उसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को हम माइनस कर देंगे। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, द रेंट व्हाट यू आर गेटिंग फॉर लेटिंग समवन पेस्टिंग अ एडवर्टीजमेंट ऑन योर फैक्ट्री वॉल। इसी तरीके से आपके पास सरप्लस फंड हुआ, वो आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया, उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अर्निंग इंटरेस्ट इज नॉट द प्राइमरी सोर्स ऑफ योर इनकम, और दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर बिजनेस। तो इस टाइप के जो भी इनकम्स होते हैं उनको हम माइनस कर देते हैं फ्रॉम नेट प्रॉफिट। एडजस्टमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो मेड अंडर this method. So when we will discuss how the cash flow statement is prepared under indirect method, we will discuss each and every step in detail. तो अभी के लिए आप यहाँ पे ये समझ लो कि इनडायरेक्ट मेथड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस एडजस्ट होता है बाय एडिंग ऑल नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड डिडक्टिंग ऑल नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स फ्रॉम द नेट प्रॉफिट, एंड adjustments for change in working capital are also made under this method. तो टिपिकली आपका जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, उसमें आप नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करोगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को लेस करोगे, ऑपरेटिंग इनकम बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकल के आ जाएगा, उसमें डिक्रीज इन करंट एसेट्स को आप ऐड करोगे, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज को ऐड करोगे, उसके बाद जो फिगर निकल के आएगी उसमें से आप इंक्रीज इन करंट एसेट्स को आप लेस करोगे, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज को भी आप लेस करोगे, तो आपको मिल जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। उसके बाद आप इनकम टैक्स पेड को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। उसके बाद में एड और लेस एडजस्टमेंट फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, देन यू विल गेट द नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सो दिस इज format of your cash flow statement. And as I told you, when we will discuss couple of examples, we will deal with all these items in detail one by one. Procedure for preparation of cash flow statement. Now the steps. According to AS3 revised, cash flow statement summarizes the cash inflow and outflow during a period. It also includes net change in cash and cash equivalents resulting from operating, investing, and financing activities of a business. There are three major steps in preparation of cash flow statement. And what are those steps? Cash flow from operating activities. So first of all, we will calculate how much cash flow happened from operating activities. The cash flow which is generated from core operation of the business through day-to-day activities is known as cash flow from operating activities. Operating activities are the main revenue generating activities of an enterprise. Sorry, that's what I told you just now कि जो बिजनेस जिस भी बिजनेस एंटरप्राइज के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, उनकी जो प्राइमरी एक्टिविटी होती है उससे जो हमें पैसा मिलता है उसको हम बोलते हैं कैश फ्लो, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज। जैसे अभी मैंने आपको कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का एग्जांपल दिया था, तो कार मैन्युफैक्चर करके उसको सेल करके जो उससे पैसा मिलेगा, दैट इज देयर मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज। देन द फॉलोइंग आइटम्स आर इंक्लूडेड इन दिस स्टेप। रिसिप्ट्स में हम क्या क्या लेके आते हैं? कैश रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, cash received from royalty, cash received from commission, fee, and other revenue. So these are the items which are considered to be part of operating income. Payments में क्या है? Payment to suppliers for goods and services, payment to employees, payment of income tax, payment of other revenue expenses. So these are the items which are considered as operating expenses. So be very careful about understanding these terms. Otherwise, जो भी items होंगे उनका treatment अगर गलत हो गया तो आपका cash from operating activities या फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, वहां पे आप कंफ्यूज कर सकते हो। तो दीज आर द आइटम्स विच आर इंक्लूडेड फॉर receipts while calculating operating cash, and the items which are considered for payments for calculation of income from operating activities. Then step 2, cash flow from investing activities. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या है? द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन इन्वेस्टिंग पार्ट ऑफ द बिजनेस। इन्वेस्टिंग पार्ट का मतलब है आपका कि आपने कहीं पे बिजनेस में और पैसा डाला है। इसमें क्या है? परचेजेस, परचेज ऑफ नॉन करेंट एसेट्स। जब भी आप कोई फिक्स एसेट्स परचेज करोगे, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज एन investing activity. Purchase of long-term investment. This is what I was discussing couple of slides back. Ki if any investment is up to 3 months or 90 days, it will be considered as a short-term investment. Anything which is more than 90 days, it will be considered as long-term investment. Sales में क्या आएगा? Sale of fixed assets and sale of shares, warrants and debentures, etc. So these are the items which are considered as part of investing activities of a business. Receipt of insurance claim from property involved in accident. So this is again a non-recurring nature of income. So if it is of regular nature, it will go in the operating. If it is of non current nature, it will come in investing activity. Receipt of interest, dividend, etc. अब यहाँ पे इंटरेस्ट और डिविडेंड जो है ये हमें रेगुलर बेसिस पे मिलेगा, लेकिन ये पार्ट होगा हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। व्हाई? बिकॉज हियर यू हैव परचेज द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब आप कार मैन्युफैक्चरर हो, कार मैन्युफैक्चरर होने की वजह से कार बना के बेचना इज योर कोर एक्टिविटी। अब वहां से आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, कुछ एडिशनल अमाउंट आपके पास था, उसको उठा के आपने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए, या कहीं पे आपने किसी को इंटरेस्ट पे पैसे दे दिए, या आपने बैंक में एफडी कर दी, तो दीज एक्टिविटीज आर नॉट योर कोर एक्टिविटीज। दीज आर योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कि आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आया, आपने उसको कहीं इन्वेस्ट कर दिया। तो अब जो पैसा आपने कहीं इन्वेस्ट किया है, वहां से जो आपको इनकम हो रही है, दैट विल बी पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नॉट योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। The third step, cash flow from financing activities. अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आएगा? रिसिप्ट्स, कैश रिसीव फ्रॉम इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, शेयर्स एसेट्रा, कैश रिसीव फ्रॉम लोन, cash payment of interest, dividend and principal amount of loan, redemption of debentures and preference shares. So these are part of financing activities. There are a couple of more definitions that we need to understand. Non-operating expenses. Non-operating expenses का मतलब क्या है? These expenses do not result in outflow of cash, but the net profit is reduced because of these expenses. In other words,
cash from operation increases in comparison to profit. These items are discussed वन बाय वन एज फॉलोज. अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि एक तो ये नॉन कैश नेचर के होते हैं, यानी कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो भी होंगे उसके अगेंस्ट हमें पैसा हमारा बाहर जाता नहीं है, हमें उसके लिए पैसे देने की जरूरत नहीं होती है. लेकिन यहां पे ये क्या करते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है उसको कम कर देते हैं. ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं. डेप्रिसिएशन. Depreciation is charged on fixed assets. It appears at the debit side of a statement of profit and loss and thus reduces profit. Depreciation is non-cash item, so it does not reduce cash. In other words, to a certain operating profit, depreciation will be added to the net profit in case we are preparing statement of profit and loss to find out the actual profit earned during the year. The depreciation account will be written at the debit side of a statement of profit and loss. तो डेप्रिसिएशन जो है वो हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है. ठीक है, और ये हमेशा डेबिट साइड पे अपीयर होता है. अब डेप्रिसिएशन जो है डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस. अब इसमें होता क्या है कि हमने अगर मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो उसकी वजह से हमारा नेट प्रॉफिट तो कम हो जाएगा, लेकिन हम कभी भी उसका पेमेंट तो नहीं करेंगे ना किसी को कि ठीक है 10,000 डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज, तो वी विल पे दैट 10,000 टू समबडी. दैट्स नॉट समथिंग दैट वी आर गोइंग टू डू. हम सिर्फ उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे. तो जब हम डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई भी एंट्री करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो कम हो जाता है. तो यहाँ पे हमें जब अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है या कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को उसमें ऐड कर देंगे. डेप्रिसिएशन के बाद दूसरी चीज है अमोर्टाइजेशन ऑफ इनटेंजिबल एसेट. इनटेंजिबल एसेट consist of those assets which cannot be seen or touched. These assets are goodwill, patent, and trademark, etc. These assets are non-tangible and they do not have any real value. It is therefore always desirable to write off these assets at the earliest. The business has its own policy to write off these assets over a number of years. Intangible assets are written out of statement of profit and loss. In this way, profit is reduced when these assets are written off, but outflow of cash does not take place. In order to calculate cash generated from operations, we have to add back these items to the profit made during the year. In case of preparing adjusted statement of profit and loss, intangible assets write-off is posted at the debit side to calculate profit during the year. अब यहाँ पे होता क्या है, amortization of intangible assets. So amortization is more or less like depreciation, but it is charged on intangible assets. Intangible assets का मतलब क्या है, those assets which don't have a physical existence. अब हमने गुडविल परचेज किया या पेटेंट राइट्स परचेज किया या ट्रेडमार्क परचेज किया, तो इनका जो इन अकाउंट का जो बैलेंस है उसको हम जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं. तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पूरा का पूरा अमाउंट एक ही ईयर में चार्ज ऑफ नहीं करते हैं. रादर देन शोइंग इट एज एन एक्सपेंस, वी show it in balance sheet as intangible asset and we write off that amount over a period of time. तो जैसे डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, उसी तरीके से हमारा एमोर्टाइजेशन भी जो है वो नॉन कैश आइटम है, और ये भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के डेबिट साइड में आता है, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट जो है वो कम हो जाता है. तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम क्या करते हैं, एमोर्टाइजेशन का भी जो अमाउंट है उसको ऐड कर देते हैं नेट प्रॉफिट में टू कैलकुलेट द कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. नेक्स्ट है एमोर्टाइजेशन ऑफ डेफर्ड एक्सपेंसेस. कई बार क्या होता है, दीज एक्सपेंसेस आर एक्चुअली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बट दे आर कैपिटलाइज्ड इन राइट ऑफ ओवर अ सर्टेन ईयर्स.
preliminary expenses, discount or loss on issue of shares or debentures, and advertising, suspense, heavy expenditure on advertisement whose benefit will be obtained over a certain year are certain examples. When these assets are written off, they are charged out of statement of profit and loss and thus reduce profit. Cash will not be reduced. It is therefore necessary that amount written off against these assets should be added to the profit to find out operating profit earned during the year. Amortization of deferred expenses. So deferred expenses or deferred revenue expenditure. What happens in this case? At times, we incur a huge expenditure, a huge expense. जैसे हमारे preliminary expenses हो गए. Preliminary expenses means expenses incurred at the time of floating a company. या discount or loss on issue of shares or debentures, or a huge expenditure on advertisement. So all these expenses that we have incurred will not only help us in earning profit during that particular year, but it will help us to earn profit in future as well. That's number one. Number two, as the amount involved in these expenses are huge, so if you will charge it back to your profit and loss in the same year, the company may suffer a loss. Clear? Now, as the company will get benefit out of these expenses over a period of time, and in order to with an objective of not to disturb the financials of the company may decide that, okay, these expenses will be written off over a period of 5 years, 10 years, whatever the time frame may be. So these expenses are amortized, means the expenses are written off gradually over a period of time. So amortization or depreciation are more or less the nature is same of both of them. So as the depreciation is a non-cash expense, similarly amortization is also a non-cash expense. Depreciation is written on the debit side of profit and loss statement, which reduces the net profit or which reduces the cash generated from operating activities. Similarly, amortization of deferred expenses is also recorded on the debit side of a statement of profit and loss, and it also reduces profit, net profit, thereby ultimately reducing the balance of cash generated from operating activities. So in order to find out the actual balance of cash generated from operating activities, what we do is we add the amount of depreciation back to the net profit. So similarly, we will add the amount of amortization of deferred expenses to net profit with an objective of finding cash generated from operating activities. So amortization में क्या होता है कि जो भी हमारे बड़े खर्चे होते हैं, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हो गया, डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स हो गया, या एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हो गया, तो ये बहुत बड़ा खर्चा हमने एक ही बार में कर दिया. तो अगर ये खर्चा जिस फाइनेंशियल ईयर में हमने किया, उसी फाइनेंशियल ईयर में अगर पूरा का पूरा खर्चा उठा के हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे, तो क्या होगा कि कंपनी हो सकता है उस ईयर कंपनी को लॉस मिले. तो अब यहाँ पे दो चीजें. पहली चीज तो ये कि ये जो खर्चा हमने किया है, इसका बेनिफिट सिर्फ हमें उसी फाइनेंशियल ईयर में नहीं मिलेगा जिस फाइनेंशियल ईयर में हमने ये खर्चा किया है, ये आगे आने वाले कई सालों में मिलेगा. तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं करने के लिए और मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी, अकाउंटिंग में जो मैचिंग कॉन्सेप्ट है उसमें खर्चा किया उसका बेनिफिट लिया, खर्चा किया उसका बेनिफिट लिया. तो जब ये खर्चा हमने 1 साल में किया बट इसका बेनिफिट हमें 5 साल तक मिलेगा, तो हम उस खर्चे को भी हम 5 साल तक राइट ऑफ करेंगे. तो ये जो राइट ऑफ करने का प्रोसेस होता है,
डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस का, उसको हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। तो अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन मोर और लेस एक ही तरीके के होते हैं और इनका ट्रीटमेंट एक ही जैसा होता है। तो डेप्रिसिएशन को हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के डेबिट साइड में लिखते हैं, उसी तरीके से अमोर्टाइजेशन को भी, अमोर्टाइजेशन ऑफ डेफर्ड एक्सपेंसेस को भी हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखते हैं। डेप्रिसिएशन जो हमारे नेट प्रॉफिट को कम करता है, जिसकी वजह से हमारा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम होता है। उसी तरीके से अमोर्टाइजेशन ऑफ डेफर्ड एक्सपेंसेस भी हमारे नेट प्रॉफिट को कम करता है, जिसका मतलब हुआ कि हमारा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम हो गया। तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करने के लिए हम डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट में, उसी तरीके से हम अमोर्टाइजेशन को भी ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट में टू ऑपरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेशन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट है लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। The profit of the year will reduce with loss, but cash will not reduce. It is therefore necessary that this item should be added to the profit to a certain amount of operating profit. अगर आपने कोई फिक्स एसेट सेल किया, उसकी वजह से जो लॉस हुआ वो आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के डेबिट साइड में लिखोगे, लेकिन इससे आपका कैश आउटफ्लो नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली आपके प्रॉफिट को रिड्यूस कर देगा। तो इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट को ऐड कर देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड डिस्काउंट ऑन अकाउंट रिसीवेबल, यहाँ पे हम डाउटफुल डेट्स या डिस्काउंट ऑन अकाउंट रिसीवेबल के लिए जो रिजर्व्स क्रिएट करेंगे या प्रोविजन बनाएंगे, उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम होगा, लेकिन इससे हमारे कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जब हम करें, ये प्रोविजन जब हम बनाएंगे तो उससे हमारा प्रॉफिट जरूर कम होगा, लेकिन कैश कम नहीं होगा। तो इसीलिए ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम इसको भी ऐड कर देंगे। क्रिएशन ऑफ रिजर्व्स, क्रिएशन ऑफ रिजर्व्स का मतलब क्या होता है, सर्टेन रिजर्व्स एंड फंड्स आर क्रिएटेड टू मीट सर्टेन known and unknown liabilities. These reserves and funds may be general reserve, reserve fund, sinking fund, capital redemption reserve, dividend equalization, and workman compensation fund, etc. These funds are charged out of statement of profit and loss, so they reduce profit. These are not cash items, so the outflow of cash does not take place. In order to calculate operating net profit, these reserves and funds are added to the प्रॉफिट टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट। इसी तरीके से जैसे आपने प्रोविजन बनाया था, अगर आप कोई रिजर्व बनाते हो उसका कुछ भी नाम हो सकता है, जर्नल रिजर्व, रिजर्व फंड, सिंकिंग फंड, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, कुछ भी नाम हो सकता है। तो जब भी हम कोई रिजर्व बनाते हैं, वी टेक सम पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, और इसका तो जब हम वहां से कुछ प्रॉफिट लेंगे तो ऑब्वियसली हमारा नेट प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। तो वापस से ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो जनरल रिजर्व या जो भी अमाउंट हमने किसी भी रिजर्व में ट्रांसफर किया उसको भी ऐड कर देंगे। तो बेसिकली ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो नॉन कैश नेचर का है, जिसकी वजह से हमारा नेट प्रॉफिट कम हो रहा है, तो उसको हम नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे टू कैलकुलेट द ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट और टू कैलकुलेट द कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। दोबारा से बता रहा हूं मैं, एनी सच आइटम विच रिजल्ट्स which is of non-cash nature. So when an item is considered to be of non-cash nature, when that particular item is reducing the net profit but is not resulting in outflow of cash from the business, so that item is considered as a non-cash item or non-cash expense. So any non-cash expense or any account which is of non-cash nature is eating out the profit, resulting in reduction in net profit, but is not obviously resulting in any kind of cash outflow, will be added to the
net profit in order to calculate the operating net profit or cash generated from operating activities. ऐसा कोई भी आइटम जो नॉन कैश नेचर का है या ऐसा कोई भी खर्चा जो नॉन कैश नेचर का है जिसकी वजह से प्रॉफिट तो कम हो रहा है लेकिन कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा है, यानी कि कैश बैलेंस पे या कैश इक्विवेलेंट अकाउंट्स पे उसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, ऐसे सारे खर्चों को या ऐसे सारे एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट में ऐड करते हैं ताकि हमें ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट या कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पता चले। सो आज के सेशन में इतना ही। वी विल have another session in this series where we will discuss rest of the items. So अभी तक जितना भी हमने डिस्कस किया उसमें अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो आप अपना क्वेश्चन या डाउट कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट कमेंट और क्वेश्चन और डाउट, or if you want, towards the end of this video I will share my email ID. You can write your questions or you can send me an email containing your doubts and I will respond back to your that question. Very well, friends. That's all from our side in today's session. Hope you liked the session. If you have liked the session, don't forget to press the like button and do subscribe to our channel. And when you are subscribing, please don't forget to press the bell icon so that you get notified as soon as we post a new video. And yes, of course, don't forget to share it with your friends. But still, if you have any queries, feel free to write us on connect2letsmaster@gmail.com and we will see you soon in our next session. Till then, thanks and happy learning.